میں ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض تھا کہ میں اپنے ملک کی ایک ایسی مسلمان لڑکی کو سہارا دوں، بھلے میں کتنا ہی کمزور سہی۔ میں نے عظمیٰ کو حوصلہ دیا، اسے چپ کروایا، اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہا وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے، ساری پاکستانی قوم اس کا کنبہ ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، عزم دیا، اس کے جذبات حب الوطنی کو سلام کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں آرمی کی جیپ میں اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے، جہاں اس کی شہید ماں اپنی بیٹی کی منتظر تھی۔ سارا محلہ سائیں سائیں کر رہا تھا، سورج کی روشنی نے رات کی سیاہی کو ننگا کر دیا تھا۔ سڑک کے کنارے کبھی کبھی سڑکوں کے بیچوں بیچ کوئی بے گور و کفن لاش پڑی دکھائی دے جاتی تھی۔ فضا بارود کی بو اور گناہوں سے بوجھل ہو رہی تھی اور ماحول چھلنی ہو رہا تھا۔ یاس کی ایک لہر من ساگر میں اٹھتی اور مجھے دور تک بہا کر لے جاتی، دوسری لہر پٹک دیتی اور مجھے حقائق کی تپتی ریت پر لا کر پھینک دیتی۔ ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے ہاتھ میں عظمیٰ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہم ان کے برآمدے سے گزر کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئے۔ میری نظروں کے عین سامنے بڑے صوفے پر اس کی ماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اگر میں نے عظمیٰ سے اس کی شہادت کی کہانی نہ سن لی ہوتی تو مجھے لگتا کہ وہ زندہ ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ عظمیٰ کی ماں اکثر اسی جگہ بیٹھا کرتی تھی۔ خون اس کی کنپٹی سے بازو پر پھیلتا اس کی سوتی ساڑی کے دامن کو بھگوتا ہوا صوفے اور زمین پر بچھے قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ سر کی دائیں طرف جہاں گولی لگی تھی ایک سیاہ مائل سرخ دائرہ بن چکا تھا، جس پرسکون انداز میں اس کی ماں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ فرشتہ اجل نے بڑی عقیدت اور احترام سے اس کی جان نکالی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کھلی آنکھوں کو بند کر دیا اور صوفے پر لٹا دیا۔ اس حالت میں لاش اکڑ جانے کا خطرہ بہرحال موجود تھا۔ عظمیٰ کے صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں راستے میں اسے سمجھاتا آیا تھا کہ حوصلے سے، ہمت سے حالات کا سامنا کرنا ہے، لیکن یہاں آ کر میرا اپنا حوصلہ ٹوٹنے لگا تھا۔ کوئی بے نام سی کسک میرے کلیجے میں اترتی جا رہی تھی، مجھے اپنا آپ ٹوٹتا اور پھر ٹوٹ کر بکھرتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا۔ میں نے سسکیاں لیتی عظمیٰ کے قریب بیٹھ کر پھر اسے یقین دلایا، عظمیٰ تم خود کو اکیلا نہ سمجھو، سارے پاکستان کی فوج تمہاری ماں ایسی ماؤں کی حفاظت کرے گی۔ میں پاکستانی فوج کا ایک نمائندہ تم سے عہد کرتا ہوں کہ میں تمہاری ماں کے قاتلوں کو چین کی نیند نہیں سونے دوں گا، انہیں پاتال سے نکال کر کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، ان کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی عظمیٰ، اسی دنیا میں، اسی سرزمین پر۔ میرے بضد ہونے پر اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی ڈالے تھے۔ میں نے اس گھر سے بستر کی ایک چادر اس کی ماں کی لاش پر ڈال کر اسے ڈھانپ دیا تھا۔ یہ لڑکی اب میری حفاظت میں تھی، اس نے مجھ سے امان طلب کی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی پناہ اور حفاظت میرے ناتوانا کندھوں پر آن پڑی تھی۔ میں نے اپنی جیپ میں نصب وائرلیس کے ذریعے میڈیکل کور کے کچھ لوگوں کو وہاں طلب کر لیا۔ محلے کی کچھ عورتوں کو عظمیٰ نے بلا لیا۔ خدا جانے وہ غدار کہاں تھے، وہ مکتی باہنی کے خونخوار بھیڑیے کون تھے۔ مجھے تو یہاں آنے والی ہر عورت کے چہرے پر ایک ہی سوال دکھائی دے رہا تھا، آخر انہیں کس جرم کی سزا دی گئی ہے۔ انہیں اپنے اور بیگانوں کے دوہرے عذاب کا سامنا تھا۔ غدار اندر سے اور اپنے باہر سے حملہ آور ہو رہے تھے۔ عورتیں عظمیٰ کو دلاسا دینے لگی۔ اس محلے میں اس کی والدہ کی کچھ شاگردیں بھی رہا کرتی تھی، وہ بھی چلی آئیں۔ مجھے آج دوسرا جنازے کا اہتمام کرنا تھا۔ میں سوچ رہا تھا واحد اور عظمیٰ کی ماں تو خوش قسمت ہیں، ان کے تو جنازے اٹھے، انہیں دفن ہونے کو زمین بھی نصیب ہو گئی۔ یہاں تو جانے کتنے بے گور و کفن لاشیں پڑی تھیں، کون جانے ان میں کتنے محب وطن ہیں، کتنے غدار۔ دوپہر تک انہوں نے مرحومہ کو نہلا کر کفن میں لپیٹ دیا۔ بمشکل سارے محلے سے 3-4 مرد ہی میسر آئے تھے، باقی خوف زدہ ہو کر دبکے رہے، کوئی جنازے کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے میڈیکل کور کے کچھ لوگوں کی مدد سے جنازہ اٹھایا۔ قبرستان کچھ دور نہیں تھا، عظمیٰ کو یہیں چھوڑا اور ہم اسے دفنانے چلے گئے۔ اس کے لیے قبر بھی ہم نے خود ہی تیار کی تھی۔ میں نے اس عورت سے جنم نہیں لیا تھا، لیکن یہ عورت میری ماں تھی، میری ساری قوم کی ماں تھی۔ اس لمحے مجھے بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی ماں کے جستے خاکی پر مٹی ڈال رہا ہوں۔ واپسی پر میں عظمیٰ کے گھر ہی چلا آیا۔ مجھے بہت کچھ سوچنا اور بہت جلد فیصلہ کرنا تھا۔ حالات نے عجیب چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، جہاں سے فرار کی کوئی راہ نہیں دکھائی دیتی تھی۔ یہاں ڈھاکہ میں میری صرف ایک پنجابی فیملی سے آشنائی تھی۔ اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ وہ لوگ میرے نزدیکی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اس فیملی کا سربراہ مؤذن تھا۔ ہماری عمروں میں 10-12 سال کا فرق رہا ہوگا، لیکن اپنے علاقے کی روایت کے مطابق ہم جلد ہی آپس میں بے تکلف ہو گئے۔ مؤذن کے 3 بچے یہاں زیر تعلیم تھے۔
और वो पुलिस में DSP के ओहदे पर फाइज था। मेरे दफ्तर के नज़दीक ही चंद मगरबी पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन रिहाइश पजीर थे, उनमें से मुअज्जिम भी था। मेरे दिमाग में आया कि इस मौके पर सिर्फ वही मेरे काम आ सकता है, क्योंकि हालात ऐसे थे कि मैं किसी भी लम्हे मेरी ड्यूटी कहीं भी लग सकती थी। फिर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से मेरा ताल्लुक होने के नाते मुझे कोई अहम ड्यूटी किसी भी इलाके में सौंपी जा सकती थी। मुअज्जिम से मैंने उज़्मा का तज़किरा तो किया था, लेकिन इसकी खिदमत का जिक्र कभी नहीं किया था। वो पुलिस अफसर बाद में था, पहले मेरा गराई था। ये कैसे मुमकिन था कि वो मेरी बात को ना समझता। मुतअद्दिद मरतबा इसने उज़्मा के वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन मैंने सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से इसे टाल दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता था। अब तो सारा खेल ही ख़त्म होने जा रहा था। मैंने उज़्मा से थोड़ी देर तक लौट आने का कहा और सीधा मुअज्जिम की घर की तरफ चल दिया। बेचारा रात का थका मांदा सुबह देर आकर सोया था, लेकिन मुझे वहां देखकर भाभी ने इसे बेदार कर दिया। आंखें मलता मुअज्जिम जब बैठक में आया तो मुझे वर्दी में देखकर हैरान रह गया। खैरियत, क्या अब इधर चढ़ाई करनी है? इसने रात के वाक़यात के मुतालिक तंज किया। हाँ मुअज्जिम, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मुअज्जिम, आज तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। बस यूँ जान लो, हालात ने मुझे इस इम्तिहान में डाला है। इससे सुरखरुई तभी मुमकिन है जब तुम मेरा साथ दोगे। यार, क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? बात करो। तुम जानते हो हम मोहब्बत एक तरफा नहीं करते, और ये भी जानकर आए हो कि मैं किसी भी मामले में इनकार नहीं करूँगा। इसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। हाँ जानता हूँ, अपनी मिट्टी की पहचान है मुझे। जिस मिट्टी ने तुम्हें और मुझे हवाला दिया है, इसकी रिवायत से भी आगाह हूँ। मैंने मुअज्जिम को सारी कहानी सुना दी। इसकी बीवी को मेरी ख्वाहिश पर मुअज्जिम ने वहीं बुलवा लिया था। मैंने महसूस किया था कि जैसे जैसे मैं उज़्मा की कहानी सुना रहा था, इनके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। ये सीधे साधे लोग थे, जो दिलों में था वही चेहरों पर। इनके चेहरों पर मैंने ये तहरीर बखूबी पढ़ ली थी कि वो दिल ही दिल में इस अजीम लड़की को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तुम मुतमईन रहो शराफगन, वो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरे मुल्क की अमानत है। मैं अपनी बेटी और बहन की तरह जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इसकी हिफाजत करूंगा। ये मेरा वादा रहा। दुआ करना खुदा मुझे वादा पूरा करने की तौफीक दे। मेरी बात के खात्मे पर इसने मजबूत इरादे से कहा। हमें इसके पास चलना चाहिए, मुअज्जिम की बीवी ने कहा। इनके बच्चों को नानी मगरबी पाकिस्तान ले गई थी। गो के इसने चंद रोज का बहाना किया था, लेकिन मैं जानता था कि जब तक हालात सही नहीं होते बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे। शाम की आमद थी जब मैं मुअज्जिम और इसकी बीवी के साथ उज़्मा के घर पहुंचा। उज़्मा से मैंने मुअज्जिम का जिक्र कर रखा था, इसलिए तारुफ में कोई तफसील नहीं बतानी पड़ी। मुअज्जिम की बीवी ने इसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली दी और इस बात का यकीन दिलाया कि वो इसे कभी तन्हा नहीं रहने देंगे। शाम ढले तक मैं वहीं रुका रहा। फिर भाभी ने मुझे और मुअज्जिम को वापस भेज दिया और उज़्मा के साथ इसी घर में रह गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी उज़्मा को इस घर से अलग करना ठीक नहीं है। हमने इरादा यही किया था कि घर को ताला लगा दिया जाए और उज़्मा को ये लोग अपने साथ ले आए। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम यहाँ मुकीम हो जाएंगे। फिल वक्त किसी पंजाबी का इस इलाके में रहना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो अजीम लोग थे। उज़्मा के लिए, पाकिस्तान की एक बेटी के लिए अपनी जान से भी गुजरने को तैयार थे। मैंने एहतियातन यहाँ पेट्रोलिंग करने वाले आर्मी की टीम को घर की निशानदेही करा दी थी। यूँ भी ये हमारा फर्ज था कि जिंदगी के आखिरी लम्हात तक हम उज़्मा की हर मुमकिन हिफाजत करें। लौटते हुए मैं मुतमईन था कि अब उज़्मा महफूज हाथों में चली गई है। रात गए तक ढाका बज़ाहिर पुरसकून रहा। किसी तरफ से किसी खास वाक़े की इत्तला न मिली, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता था कि इस खामोशी के पीछे कितने कहरनाक तूफान गर्दिश कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ड्यूटी करने के नाते मैं ये अंदाजा कर सकता था जब ये हौलनाक अंदेशे जो मेरे जहन में सांबों की तरह बिलक रहे हैं, अचानक जब सर उठाएंगे तो मुंह फाड़ कर हमारी सलामती को ही निगल जाएंगे। मैं इस वक्त की तस्वीर से ही लर्ज़ा था, वो बुरा वक्त जो जल्द आने वाला था। लेकिन इंसान कितना खुशफहम वाक़या हुआ है। मुझे तब भी यही उम्मीद थी कि हम हालात पर काबू पा लेंगे। ये तो कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि हम बीच से ही टूट कर रह जाएंगे। अगर दूर दूर तक भी मेरे वहम गुमान में ये बात होती तो मैं उज़्मा को यहाँ रुकने के बजाय पाकिस्तान अपने घर भेज देता। मैं अंदाजा कर सकता था कि इसे अचानक अपने दरमियान पाकर मेरी माँ को कितनी खुशी होगी। जिस ख्वाहिश को दिल में लेकर वो तेजी से जिंदगी की शाहराहें फलांग रही थी, इसकी तकमील से वो फूले न समाएगी। इसने तो इतनी मरतबा मुझसे शादी कर लेने की आरजू की थी कि अब बेचारी ने ये जिक्र करना ही छोड़ दिया था। लेकिन हुस्न आरा की शादी के बाद इसने जो भी खत लिखा, इसमें यही कहा था कि अब वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगी और जैसे ही मैं सुरखरू होकर लौटा वो मेरी शादी कर देगी। मैंने इरादा कर लिया था कि इस मरतबा इसे खत लिख दूंगा कि वो अब इसकी फिक्र से बेनियाज हो जाए और इसके बेटे ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। और यही हुआ। मैंने अगले रोज ही अपनी वालदा को एक तवील
طویل خط لکھا جس میں عظمیٰ کی ساری کہانی لکھ کر اس سے اجازت طلب کی تھی اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اس کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اگر اس نے اجازت دی بھی تو اس کے پاس گاؤں آ کر اس کی خواہشات کے عین مطابق شادی کروں گا۔ میں جانتا تھا اسے مجھے دلہا بنے دیکھنے کی کتنی شدت سے آرزو ہے۔ شاید قدرت نے اس کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہی عظمیٰ کی اور میری ملاقات کروائی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا، انسان بہت خوش فہم واقعہ ہوا ہے اور یہ امر واقعہ ہے۔ ہم بہت مستعد ہو گئے اور بہت مصروف بھی۔ کبھی خوش قسمتی سے 24 گھنٹوں میں 3-4 گھنٹے کی آنکھ لگنے کو مل جاتی تو ہم اسے اپنی خوش بختی سمجھتے۔ شہر کا نظام اب عموماً فوج کے کنٹرول میں تھا۔ صرف مغربی پاکستان سے آنے والی پولیس اور مقامی رضاکار ہی ہمارے ساتھ تھے، ورنہ تو یہاں ہمارے لیے صرف نفرت ہی نفرت اور انتقام تھا۔ اس دوران باقاعدگی سے میں عظمیٰ سے ملتا رہا۔ عظمیٰ کا بھابھی سے کافی دل لگ گیا تھا۔ وہ لوگ اب میرے نزدیک معظم کے گھر میں ہی منتقل ہو گئے تھے۔ بھابھی نے اسے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اسے کہا تھا کہ حالات سدھرتے ہی یہ لوگ یہاں فیل گنج میں آ جائیں گے۔ عظمیٰ کے گھر کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک اہم مشن کے لیے طلب کر لیا گیا۔ اپریل کے آخری تاریخ مشرقی پاکستان کی سرحدوں میں دشمن کی کھلم کھلا مداخلت اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی۔ ہم نے متعدد مرتبہ بھارتی فوجی سپاہی اور افسران کو گرفتار کیا، انہیں انٹرنیشنل پریس کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہماری بدقسمتی تھی یا بھارتی سفارتکاروں کا کمال کہ بین الاقوامی پریس نے ہمارے خلاف یک طرفہ کارروائی جاری رکھی۔ انہیں معمولی واقعات میں پاکستانی فوج کے بے تحاشا ظلم و ستم تو نظر آ جاتے، لیکن بین الاقوامی اصولوں کی اس طرح کھلم کھلا خلاف ورزی دکھائی نہ دی۔ شاید ساری دنیا کے پریس نے مل کر ہمارے خلاف ایکا کر لیا تھا اور دنیا کو تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا جا رہا تھا۔ دشمن کا توپ خانہ پاکستانی سرحد کے اندر دور تک گولہ باری کرتا رہتا تھا اور اس گولہ باری کی آڑ میں تربیت یافتہ بھارتی اور بنگالی تخریب کار پاکستانی سرحدوں کا تقدس پامال کر رہے تھے۔ ان دونوں دراصل بھارتی فوج کی کوشش یہی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو تخریب کاروں کو مشرقی پاکستان کی سرحد کے اندر چند میل کے علاقے پر دسترس حاصل ہو جائے، لیکن یہ لوگ یہاں بنگلہ دیش کی حکومت قائم کر کے اپنی مرضی سے کھلم کھلا کھیل سکیں۔ لیکن سر دھڑ کی بازی لگا کر پاکستانی افواج اس کوشش کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ اس گھناؤنے منصوبے کے لیے بھارتی فوج عموماً ان علاقوں کا انتخاب کرتی جو تکون کی شکل میں بھارتی سرحد کے اندر تک چلے گئے ہوتے۔ بھارت کے ساتھ مشرقی پاکستان کی سرحد کوئی لمبی اور سیدھی پٹی نہیں، بلکہ کٹی پٹی، کہیں سے کچھ پیچھے ہٹی، کہیں سے بہت آگے کو نکلی ہوئی ہے۔ کومیلا کا علاقہ خصوصاً اس نوعیت کا ہے۔ دشمن نے اپریل سے پہلے ہفتے میں ایک روز اچانک زبردست گولہ باری شروع کر دی تھی اور فینی نامی علاقہ جو ایک تکون کی شکل میں بھارتی سرحد کے اندر پھیلتا چلا گیا تھا، قریباً 15 میل کی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی جوان ذہنی طور پر دشمن کے اس اچانک اور توپ خانے کے بھرپور حملے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہی یہ امید کی جا رہی تھی کہ دشمن ایسی اوچھی حرکت کر سکتا ہے۔ فینی کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ یہ علاقہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں قابض ہوتے ہی دشمن نے ان پہاڑیوں پر زبردست مورچہ بندی کر لی اور تمام اہم پوزیشنز میں مورچہ سنبھال لیا۔ اگلے روز پاکستانی فوج کی 2 بٹالین نے اس علاقے کو واپس لینے کے لیے دشمن پر حملہ کر دیا، لیکن محفوظ اونچی پناہ گاہوں میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دشمن کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابتدا ہی میں کچھ جوانوں کی شہادت کا نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے پسپائی اختیار کر لی۔ 13 اپریل کی صبح مجھے میرے کمانڈنٹ آفیسر نے معمول سے ہٹ کر بڑے خوشگوار موڈ میں طلب کیا۔ اس نے فور پر صرف اتنا کہا، شرافگن آؤ ذرا کاسک بازار کی سیر کرائے۔ میرے اوسی بہت سنجیدہ قسم کے افسر تھے اور عموماً ریزرو ہی رہا کرتے تھے، لیکن آج ان کا موڈ خلاف معمول بڑا خوشگوار دکھائی دے رہا تھا۔ اوکے سر، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نزدیک ہیلی پیڈ پر پہنچ گیا جہاں مجھے طلب کیا گیا تھا۔ یہاں پہلے ہی سے ایک ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا جسے ملک کے ایک مایہ ناز پائلٹ جو بعد میں اپنے عظیم کارنامے یعنی اپنی یونٹ کے ساتھ فرار ہو کر اپنے ہوائی بیڑے سمیت برما پہنچ گئے تھے، اڑا رہے تھے۔ جنرل صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ہم لوگ ڈھاکہ سے ٹیک آف کر گئے۔ ہیلی کاپٹر نے چٹاگانگ لینڈ کیا۔ یہاں پہنچ کر جنرل صاحب کے علم میں مقامی ایریا کمانڈر کے ذریعے یہ بات آئی کہ کومیلا کے سرحدی علاقے فینی پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ صورتحال بڑی تشویشناک تھی۔ دونوں کمانڈر وہیں ایک کونے میں کھڑے ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ اس سے کس طرح نپٹا جائے۔ فینی پر قبضے سے نہ صرف دشمن کے ہاتھ ایک مضبوط مورچہ آ گیا تھا، بلکہ
यहाँ बैठ कर वो हमें दूर तक मार सकता था और अपने घिनौने मकासद में कामयाब हो जाता। हम दोनों कर्नल लियाकत और मैं कमरे से बाहर बैठे रहे और 2 घंटे तक दोनों अफसरान मशवरा करते रहे, जबकि मैं अंदर होने वाली सूरत हाल से बेखबर बाहर जनरल का मुंतजिर था। करीबन 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद जनरल साहब ने मुझे और कर्नल साहब को बुलाया और हमें कहा कि फैनी को दुश्मन से वापस लेने के लिए एक मंसूबा तय पाया है, जो कुछ इस तरह का है। प्लान ये था कि हम लोग 2 हेलीकॉप्टरों में रात के अंधेरों में कमांडोज को ले जाएंगे और दुश्मन के सर पर लैंड करेंगे। हेलीकॉप्टर वापस लौट आए, बाकी काम कमांडो ने करना था। यहाँ आपको एक बात जरूर बताता चलूं कि जिस इलाके में हमने कोई भी एक्शन करना होता है, ख्वाह वो मुश्किल हो या आसान, जरूरी होता है कि हम इसकी मुकम्मल मालूमात हासिल हो। जबकि सूरत हाल ये थी कि वहाँ किसी को भी ये इल्म नहीं था कि दुश्मन कहाँ कहाँ काबिज है। खुसूसन एविगेशन वालों की मालूमात इस इलाके के मुतालिक सिफर थी। ये ऑपरेशन हमने रात के अंधेरे में करना था और अपनी तमाम लाइट्स ऑफ रखनी थी। और इलाके के मुतालिक तो मैं बता ही चुका हूँ कि पहाड़ी इलाका था, जगह जगह नदी नाले और गहरे खड्ड इसके सिवा थे। हमें तो ये भी इल्म नहीं था कि जहाँ हमने लैंड करना है वहाँ जमीन कैसी होगी। एविगेशन के मकामी कर्नल ने तो साफ कह दिया था कि ये मंसूबा नामुमकिन उल अमल है। जनरल साहब ने पायलट की तरफ देखा और पूछा, लियाकत कैन यू डू इट? कर्नल लियाकत ने एक लम्हे के लिए सोचा और अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए कहा, जनाब मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। वहाँ मौजूद सब अफसरान हैरान रह गए कि इसने कैसे हाँ कर दी है, क्योंकि कोई भी समझदार अफसर इन हालात में किसी नाजुक जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मुझे बाद में कर्नल साहब ने बताया, मैंने सिर्फ एक बात सोची थी कि अगर दुश्मन से हम ये इलाका वापस ना ले सके तो इसे ख्वाह-मख्वाह बर्तरी का एहसास होगा। और मेरे लिए पाक फौज का एक कर्नल होने के नाते ये सोच ही बड़ी हौलनाक थी कि मेरे जीते जी दुश्मन हमें बुजदली का ताना दे। हमारे जनरल साहब वहीं रुक गए और हमने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए कमांडोज को वहां जमा करना शुरू कर दिया। आपको हैरत हुई होगी कि ये प्लान इतना अचानक था कि हमें कमांडोज भी चटागांग के पहाड़ी इलाके से लेकर आने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को चटागांग की पहाड़ियों में डिप्लॉय किया गया था। यहाँ एक और मसला पैदा हो गया कि अगर हमने कमांडोज को इस इलाके से निकाल लिया तो मुहाज खाली हो जाएगा, जबकि खानापूरी के लिए हमारे पास एक भी फालतू सिपाही नहीं था। पाक फौज का एक एक जवान अपनी जगह अहम ड्यूटी दे रहा था। इस मसले का हल हमने ये निकाला कि कमांडोज की जगह यहाँ मेजू कबाइल को यहाँ बिठाया जाए। मेजू कबाइल पाकिस्तान के जबरदस्त वफादार थे और पैदाइशी फौजी होते थे। शाम गए तक हेलीकॉप्टर पर मुख्तलिफ मकामात से कमांडोज को लाकर इस जगह इकट्ठा करते रहे। हमने अपने ऑपरेशन का आगाज रात 8 बजे करना था। जो कमांडोज इस मिशन में हिस्सा ले रहे थे, इनका ताल्लुक 3rd कमांडो बटालियन से था। हमारे साथ दूसरे हेलीकॉप्टर पर मेजर पैट्रिक थे। जब मेजर पैट्रिक को सूरत हाल का इल्म हुआ तो इसने हैरानगी से कर्नल लियाकत से पूछा, क्या यह मुमकिन है? उन्होंने कहा, फिर तुम अपने क्राइस्ट को याद करो, मैं अपने अल्लाह को याद करता हूँ। ये ऑपरेशन तो बहरहाल हमने करना ही है, ख्वाह जान ही क्यों ना चली जाए। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस वक्त हमारे जज्बात का क्या आलम था। इस बात ने मेजर पैट्रिक का हौसला भी बढ़ा दिया और इसने बड़े अज़्म से कहा, हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। दोनों हेलीकॉप्टर पर कमांडो सवार कर लिए गए। जनरल इस ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे और इस जगह मौजूद थे जहां से हमने उड़ना था। मैंने आपको बताया कि जनरल साहब अमूमन रिजर्व रहते थे, लेकिन उस रोज वो हमसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो हमारा हौसला बढ़ा रहे थे। हेलीकॉप्टर में मैं अपने साथियों के साथ मौजूद था। इस मुख्तसर से ग्रुप की कमान मुझे करनी थी। पहले हमने ही लैंड करना था। हम कर्नल लियाकत के हेलीकॉप्टर में सवार थे। मैं अंदाजा लगा सकता था कि मिशन कितना नामुमकिन उल अमल है, लेकिन यहाँ सोचने की मोहलत ही किसे नसीब थी। वहाँ तो हमने अहकामात पर अमल करना और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना था, क्योंकि एक कमांडो को यही तरबियत दी जाती है और इस दिन के लिए फौज अपने जांबाज तैयार करती है। दूसरा हेलीकॉप्टर को हमारे ताकुब में आना था, जिसे मेजर पैट्रिक, जिन्हें हम सब पिट कहते थे, उड़ा रहे थे। हमें यह ऑपरेशन हेलीकॉप्टर की तमाम लाइट्स ऑफ रख कर रात के अंधेरे में अंजाम देना था। मैंने अपने हेलीकॉप्टर में दाखिल होकर एक नज़र कमांडोज पर डाली तो जैसे मेरे बदन में एक तेज सनसनाहट दौड़ गई। ये वो जियाले सरफरोश थे जो मादरे वतन के लिए एक खुदकुशी की हद तक दिलेराना ऑपरेशन करने जा रहे थे।
यकीन मानिए इन पर नजर पड़ते ही मेरे दिल में अगर कोई मामूली सा शुबा भी था तो वो भी खत्म हो गया। अल्लाह का नाम लेकर हमने पहले टेक ऑफ किया। लाइट्स तो मुकम्मल ऑफ थी, लेकिन मैं विंड स्क्रीन से जनरल साहब को बखूबी देख सकता था। उन्होंने हाथ हिलाकर हमें अलविदा कहा। हमारे पीछे मेजर पीटरक जांबाजों की एक टोली लेकर उड़े। मैं दिल ही दिल में सिर्फ एक दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, जिस काम का बेड़ा हमने उठाया है इसे तू अपनी रहमत से पाया तकमील तक पहुंचाना। बज़ाहिर तो कामयाबी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। हमारे पास कोई नक्शा नहीं था। हमें लैंड करने या ऑपरेशनल एरिया दिखाने के लिए दूसरी तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। इलाके की नशेब फराज से भी हमारी मालूमात सिफर थी। जो कुछ भी करना था अल्लाह की मदद और अपनी कुव्वत बाजू के भरोसे करना था। कर्नल ने दिल ही दिल में अपनी याददाश्त के भरोसे एक मखसूस सिमत का तयन कर लिया और ये अंदाजा लगा लिया कि हम फी मिनट 2 मील का सफर तय करेंगे। इस हिसाब से हमने वक्त का तयन करना और फिर लैंड करना था। मेजर पिट को भी ताक़ुब में आना था, इसलिए अमलन तमाम जिम्मेदारी कर्नल लियाकत पर आन पड़ी थी। अगर इलाका खुला या मैदानी हो और चांदनी हो तो भी हम लोग जमीन पर होने वाली मामूली सी चमक से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि ये जगह हमारे लैंड करने के लिए मुनासिब है या नहीं। लेकिन यहाँ तो सिवाय दरख्तों, झुंडों और पहाड़ी टीलों के और कुछ न था। अभी हमने थोड़ा सा फासला ही तय किया था कि अचानक हेलीकॉप्टर बादलों में गिर गया। एक और नई मुसीबत थी जिसका हमने उड़ने से पहले अंदाजा नहीं लगाया था कि इस इलाके में बादल भी खासे नीचे थे। अब हमारे लिए जरूरी था कि बहुत नीचे आ जाए। यहाँ एक और खतरा भी पेश नजर था कि अगर हम ज्यादा नीचे चले गए तो अंधेरे में किसी दरख्त की चोटी, किसी पहाड़ी वगैरह से ही ना टकरा जाए। इससे मुतजाद ये कि दोनों पायलट वायरलेस पर एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। इस तरह ये खतरा सर पर मौजूद था कि आपस की गुफ्तगू दुश्मन को किसी शक में मुब्तला कर देती। वो सेट इस वक्त इस्तेमाल करते जब नागुज़िर होता। इलाके की पोजीशन हमारे तवक्कुआत से बढ़कर खतरनाक थी। हर तरफ पहाड़ियाँ, बड़े बड़े दरख्त, जंगलात का सिलसिला दूर तक फैलता चला जा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि यहाँ कोई भी ऐसा कुदरती सिग्नल मैसर नहीं आ रहा था जिसे देखकर हम यहाँ लैंड करते। हालांकि अमूमन कोई न कोई इशारा ऐसी सूरत में मिल ही जाया करता है। मैं आज भी जब अपने इस अजीम पायलट कर्नल लियाकत को याद करता हूँ तो मेरा हाथ खुद ब खुद माथे तक उड़ जाता है। मैं इसकी अजमत को सलाम करता हूँ। ऐसे नामुमकिन हालात में कोई माई कलाल अपनी जान से खेलने का खतरा मोल नहीं लिया करता। मैं कर्नल के साथ वाली सीट पर बैठा था। खुदा खुदा करके उन्होंने अपनी फनी महारत और अल्लाह की नुसरत के बलबूते पर बादलों से जान छुड़ाई। अब हम ऐसी पोजीशन में थे कि कम से कम अंधेरे से नीचे कुछ दिखाई दे जाता था। अचानक ही हम दोनों को झटका सा लगा। खिलाफ तवक्को हमारे सामने नस्ब रेडियो में जिंदगी पैदा हुई और दूसरी तरफ मेजर पिट की आवाज सुनाई दी। मैं बादलों में बुरी तरह फंस गया हूँ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारा हेलीकॉप्टर भी नजर नहीं आ रहा। हम अंदाजा कर सकते थे कि मेजर पिट ने कितनी मजबूरी की हालत में गुफ्तगू का खतरा मोल लिया था। यहाँ पर कर्नल लियाकत की फनी महारत काम आई। उन्होंने मखसूस तकनीकी जबान में मेजर पिट को सिमत का तयन करवाया और हम खासे नीचे आ गए। हमारे साथियों को सिर्फ इतना बताया गया कि इस एरिया में एक छोटी सी नदी बहती है। अब वही नदी तलाश करनी थी जिसके पानी से पैदा होने वाली चमक की मदद से हमने रास्ते तलाश करने थे। अल्लाह ने करम किया और जल्द ही हमें पानी की मामूली सी चमक दिखाई। कर्नल ने इसके ऊपर उड़ना शुरू कर दिया और मेजर पिट ताकुब में आ रहे थे। ये कुदरती सिग्नल मैसर आते ही कर्नल ने कमांडोज को तैयार रहने का इशारा किया और एक मुनासिब जगह देखकर वहां लैंड कर गया। यहाँ इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम जमीन पर उतर जाएं। कर्नल ने जमीन से चंद फुट की बुलंदी पर हेलीकॉप्टर खड़ा कर लिया और मेरे साथी चंद ही मिनट में अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों के साथ नीचे कूद गए। पहला हेलीकॉप्टर खाली होते ही फिजा में बुलंद हो गया और मेजर पिट को लैंड करने का सिग्नल दिया गया। खुद इसकी निगरानी और किसी नागाहिनी आफत का मुकाबला करने के लिए इसके सर पर मौजूद रहे, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि दुश्मन ने हमें देख लिया हो और वो गोलाबारी शुरू कर दे। फिर वही हुआ जिसका खदशा था। इसी असना में दुश्मन को हमारी मौजूदगी का इल्म हो चुका था और हमारे लैंड करते ही इसने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन दुश्मन हमारे इस जुर्रतमंदाना एक्शन से इस बुरी तरह बौखला गया था कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टारगेट कौन सा है। इस फायरिंग में पिट भी लैंड कर गया। इसका हेलीकॉप्टर जहां उतरा वो जगह कदरे दलदली थी, लेकिन आफरीन है हमारे शेरदिल कमांडोज पर कि उन्होंने किसी मुश्किल को खातिर में लाए बगैर छलांगे लगा दी
और दलदल से सलामती से बाहर निकल आए। यहाँ कुदरत ने हमारी बड़ी शानदार तरीके से मदद की। शायद जवानों की जरूरत पर वक्त भी इन्हें नजराना अकीदत गुजारना चाहता था। जिस इलाके में कोई फौज कब्जा करती है वहाँ जो पोस्टें कायम की जाती है, इनकी पोजीशन इस तरह की रखी जाती है कि सरहद के बिल्कुल नजदीक एक पोस्ट होती है, फिर इससे कुछ दूर पीछे एक दूसरी और फिर कुछ फासला रखकर 2 पोस्टें बनाई जाती हैं। इस तरह मकसूद ये होता है कि अगली पोस्ट पर अचानक हमला होने की सूरत में पिछली दोनों पोस्टें इसे कवर फायर देती हैं। जहां हमने लैंड किया था वो जगह तीनों पोस्टों के ऐन दरमियान थी। दुनिया की तजुर्बेकार फौजें भी बमुश्किल कमांडोज के अचानक हमले की सूरत में अपने आसाब पर काबू रख सकती हैं। हमारा मुकाबला तो एक वहशी कौम के जालिम फौज से था और जालिम रिवायती तौर पर बुज़दिली भी हुआ करता है। वही हुआ। कमांडोज के अचानक हैरत अंगेज हद तक तेज और बरवक्त कार्रवाई ने आसिफों को बौखला कर रख दिया। अब सूरत हाल ये हुई कि पिछली दोनों पोस्टों को यही गुमान गुजरा कि अगली पोस्ट पर हमला हो गया है और अगली पोस्ट ने ये समझा कि कमांडोज ने इनकी पुश्त पर मौजूद हिफाजती पोस्टों पर उतर गए हैं। रात का अंधेरा, दलदल, पहाड़ी और जंगली इलाका। दुश्मन खौफ और धोखे का शिकार हो गया और एक दूसरे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी गनों के दहाने एक दूसरे की तरफ घुमा दिए। दोनों ने एक दूसरे पर गोलाबारी शुरू कर दी। मैंने इसको ताईद गैबी जाना। तमाम कमांडोज मेरे हुक्म पर अपनी जगह दुबक कर बैठ गए। जब इनकी गोलाबारी की शिद्दत में कमी आने लगती, हम दोनों पोस्टों पर फायरिंग शुरू कर देते और फिर वो जोशो खरोश से एक दूसरे पर आग बरसाने लगते। 2 घंटे तक दुश्मन ने अपने अरमान निकाले। जब इन दोनों के हाथों इनका खात्मा हो गया तो मेरे हुक्म पर रही सही कसर पूरी करने के लिए मेरे जवान हरकत में आ गए। गैज़ो गज़ब में डूबे इन खुदा के शेरों ने महज आधे घंटे की तेज तरीन और हौलनाक कार्रवाई से दुश्मन का सफाया कर दिया। बुज़दिल दुश्मन सिर्फ आधा घंटे की लड़ाई में ही दुम दबाकर भाग गया। सुबह तुलू होने से पहले वहां हमारा कब्जा हो चुका था। मेरी तरफ से फतह का इशारा मौसूल होते ही यहाँ मौजूद फ्रंटियर फोर्स और बलोच रेजिमेंट के जवानों ने यलगार की और अपना कब्जा मुस्तहकम कर लिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों हेलीकॉप्टरों में मौजूद थे। हमने जवानों को इनके ठिकानों पर उतारा और खुद चटागंग पहुंच गए। वेल डन। जनरल साहब ने हमें देखते ही नारे तस्कीन बुलंद किया। थोड़ी ही देर बाद मैं जनरल साहब के साथ ढाका की तरफ रवाना था।